عزیز بہن بھائیوں، خدا یسوع مسیح میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ آج کا کلام مقدس جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، پہلے خدا سے میں اس کے لیے آپ کے لیے اپنے لیے روح القدس کی ہدایت و رہنمائی مانگ لیتا ہوں۔ آج کا کلام مقدس درختوں کے بارے میں ہے، جس کے لیے حوالہ میں پڑھوں گا قضات کی کتاب میں سے، اور اس قضات کی کتاب کے اندر اس کے 9ویں باب کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ درختوں کے بارے میں ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں انسانوں کو درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بہت سارے درخت ہیں لیکن خاص طور پر چند ایک درختوں کا بائبل کے اندر کثرت کے ساتھ ذکر ہے، اور یہ درخت جو ہیں ان کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، لیکن آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے ان درختوں کی کچھ روحانی افادیت، فائدہ انسانوں کے لیے اور خدا کے لیے کہ یہ کیا حیثیت اور اہمیت رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ آج خدا کے کلام مقدس میں سے جاننے والے بنیں گے۔ میں آپ کے سامنے قضات کی کتاب اس کے 9ویں باب سے 9ویں باب میں سے 8ویں آیت سے شروع کرتا ہوں۔ اس کلام مقدس کو غور سے سنیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائیں، سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا، تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو، جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں، چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو، جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں، چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ آگے سوال یہ نشان ہے۔ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا، تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا، تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو، جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے، چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، چل تو ہی ہم پر سلطنت کر۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا، اگر سچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناؤ تو آؤ میرے سایہ میں پناہ لو۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا، اگر تم سچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناؤ تو آؤ میرے سایہ میں پناہ لو، اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے۔ خدا کی برکت اس کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ عزیز بہن بھائیوں، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، بائبل مقدس کے اندر ہم بہت سارے حوالے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جہاں انسانوں کو درختوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سب سے بڑی مثال جو ہے اس وقت میں اور آپ جانتے ہیں ہمارے وہ ہے یسوع مسیح کے بارے میں۔ یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یہ یسوع مسیح نے انگور کے درخت سے اپنے آپ کو تشبیہ دی، اپنی خدمت کو، اور جو کچھ بھی یسوع مسیح نے کیا اور کہا اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تو پھر اگر اور دیکھیں تو بائبل مقدس کے اگر ذرا پرانے عہد نامے میں جائیں تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ صادق کھجور کے درخت کی مانند لہلہاتے ہیں۔ پھر کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ بھی انسانوں کی طرف، یعنی جو درخت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی انسانوں کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے انسانوں کی خدمت اور خدا کی تابعداری اور وفاداری اور فرما برداری جو ہے وہ منعکس ہوتی ہے، یا ہمیں معلوم ہوتی ہے، یا ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے۔
तो आइए, जब मैंने चंद आपको मिसालें दे दी हैं ताकि कलाम मुकद्दस को समझने में और दरख्तों और इंसानों के बारे में जो कलाम मुकद्दस में लिखा गया है उसके बारे में हम जानने वाले बने। तो आइए जरा थोड़ी देर के लिए पहले इन दरख्तों पर गौर करें कि जिन दरख्तों का जिक्र कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले जैतून के दरख्त का जिक्र है कि जैतून का दरख्त जो है, इसके बारे में मैं और आप जानते हैं कि ये बादशाहों को मसा करने के लिए, ये नबियों को मसा करने के लिए, ये खादमीन को मसा करने के लिए, ये खुदा की मुकद्दस यानी हैकल सुलेमानी के अंदर जलाने के लिए, और आज भी जैतून के तेल के चिराग जलाकर रखे जाते हैं। और उस जमाने में तो ये लाजिम था कि हैकल के अंदर जो प्याले रखे जाएं, यानी तेल के प्याले रखे, उनमें ताजा जैतून का कुटा हुआ तेल जो है वो उनके अंदर दिखा जाए। तो ये जैतून के दरख्त में मुख्तसरन सी बात है। तो जैतून का दरख्त या जैतून का तेल जो है, ये एक मुकद्दस तेल के तौर पर जो है वो जाना और माना और समझा जाता है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो दूसरे जिस दरख्त का जिक्र आता है वो है अंजीर का दरख्त। अंजीर के दरख्त से भी चंद एक मिसालें हम मिलते हैं कि जब हिजकिय्याह बादशाह बीमार हुआ तो खुदा ने हुक्म दिया कि इसके फोड़े पर क्या करो, अंजीर लेकर उसकी टिकिया बनाओ और उसको उसके जख्म पर रखो, जिससे वो उसका फोड़ा ठीक हो जाएगा। तो अंजीर का दरख्त जो है, इसकी एक खूबी जो है वो ये है कि ये इंसानी भूख को मिटाने के लिए, कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और कहा जाता है कि अगर किसी इंसान को भूख लगी हो तो वो 2-4 अंजीर के मेवे खा ले, अंजीर का फल खा ले, तो उसकी भूख बड़ी हद तक कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसके लिए मैं अपने मसीहा की मिसाल दूंगा कि यीशु मसीह ने भी एक वक्त में अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर, यीशु मसीह एक दरख्त के पास गया, वो अंजीर का दरख्त था। यीशु मसीह इसलिए गया कि इसमें से मैं फल तलाश करता हूँ और उस फल से अपनी भूख मिटाता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह को क्या लगी थी? भूख लगी थी। और यीशु मसीह ने अपनी भूख को मिटाने के लिए, कम करने के लिए अंजीर के दरख्त के पास गया, अंजीर के दरख्त को तोड़ा, उसके पत्ते इधर उधर हटाए, लेकिन अंजीर के दरख्त पर कोई अंजीर का मेवा मौजूद नहीं था, फल मौजूद नहीं था। तो फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने फिर क्या की? उसको एक लानत दी कि जिंदगी का मालिक, इस दर्द को बनाने वाला, सब कुछ बनाने वाला तेरे पास आया और तू उसकी भूख न मिटा सका। हालांकि तेरा काम ही ये है। तो क्या होगा? वो लिखा है कि अंजीर का दरख्त उसी लम्हे सूख गया और यीशु मसीह उसके पास से चला गया। तो अंजीर का दरख्त जो है, इसकी खूबी और खसूसियत जो है वो ये है कि ये भूख को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर हम अगर आगे बढ़े तो फिर अगला जिस दरख्त का जिक्र आता है वो है अंगूर की बेल जो है, ये शुरू में तो बेल ही होती है, लेकिन जब ये बहुत पुरानी हो जाती है, ये बेल बड़ी उम्र की हो जाती है, यानी उम्र रसीदा हो जाती है, तो फिर ये बेल एक दरख्त के तने की सूरत जो है वो इख्तियार कर लेती है। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, अंगूर का हकीकी बेल नहीं कहा, लिखा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। और फिर इस अंगूर की मैं जो है, ये भी कलाम मुकद्दस के अंदर कसरत के साथ इस्तेमाल हुई है। जैसे मैं और आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब अपने खून को तशबीह देनी थी, तो मैं को इस्तेमाल किया और मैं को कहा, यानी अंगूर के शीरे को कहा, अपना खून कहा, ये मेरा खून है, इसको लो और पियो और हमेशा की जिंदगी पाओ। तो यीशु मसीह जो है वो अपने आप को अंगूर के दरख्त से तशबीह देते हैं, और अंगूरों की मैं और शीरा जो है, ये बहुत सारे मौके के अंदर बाइबल के अंदर इसके इस्तेमाल का जिक्र मिलता है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक मौजज़ा किया। वो मौजज़ा क्या था? वो था कि
एक एक दावत के अंदर, शादी की दावत के अंदर यीशु मसीह की वालिदा माजिदा जो थी वो भी वहां पर मौजूद थी। मैं जो थी वो खत्म हो गई, और उसके बाद फिर मैंने यानी मैं कम पड़ गई। तो फिर जब उसको और जरूरत पड़ी तो फिर यीशु मसीह ने क्या किया, कहा मटकों के अंदर पानी भर दो। दो दो मन के मटके थे, यीशु मसीह ने कहा इनके अंदर पानी भर दो। फिर यीशु ने अपनी मौजूदाती कुदरत से उन 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 उन, उन मटकों के अंदर मौजूद पानी को मैं बना दिया। और फिर जब पी गई तो उन्होंने कहा कि ये मैं तो पहले से कई दर्जे अच्छी है। तो हम देखते हैं कि मैं जो है वो इस्तेमाल हुई है। फिर पौलुस रसूल जो है वो भी मैं के बारे में अपने शागिर्द तिमोथियस को ताकीद करता है कि थोड़ी सी मैं पी लिया कर, यानी अंगूर का शीरा, ताजा शीरा पी लिया कर। इससे तेरा मैदा ठीक रहेगा और इससे तू सेहतमंद रहेगा। फिर हम ये भी देखते हैं कि अंगूर के शीरे को छोटे छोटे बच्चों, यानी दूध पीने वाले बच्चों को, जो भी बहुत चंद महीनों के होते हैं, उनके मैदे को भी तकवियत देने के लिए ग्राइप वाटर दिया जाता है, यानी अंगूरों का पानी उन बच्चों को पीने के लिए दिया जाता है। तो खैर, बात करें तो बात और भी हो सकती है, लेकिन अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक और दरख्त है, और वो है ऊंट कटारा। ऊंट कटारा जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एक जड़ी बूटी है। ये जंगल बियाबान के अंदर होती है, और अक्सर बेशतर ये मैदान और ऐसी ऐसी सरजमीन में होती है जहाँ इंसानों का बहुत कम आना जाना होता है। तो ये जो ऊंट कटारा जो है, इसका फल छोटे छोटे पीले रंग की गोल रंग का फल होता है। ये अपने जायके के अंदर इतना कड़वा होता है कि ना इसको इंसान खा सकता है और ना इसको कोई हैवान खाता है। ये इसी तरह सूख जाता है अपनी जगह पर। तो ये ऊंट कटारा जो है, ऊंट कटारे के बारे में भी यहाँ लिखा है। तो फिर क्या क्या हुआ, दरख्त जो थे वो ऊंट कटारे के पास गए, और लिखा है ऊंट कटारे ने तब उन सब दरख्तों ने ऊंट कटारे से कहा, चल तू ही हम पर सल्तनत कर। ऊंट कटारे ने दरख्तों से कहा, अगर तुम सचमुच मुझे अपना बादशाह बसा करके बनाओ तो आओ मेरे साया में पनाह लो, और अगर नहीं तो ऊंट कटारे से आग निकलकर लुबनान के देवदारों को खा जाए। आइए अजीज बहनों, भाइयों, मैं अब ये चाहता हूं कि अब इसके रूहानी पहलू के बारे में बात की जाए। इन दरख्तों के बारे में मैं समझता हूं, जैसे मैंने आपको मिसालें दे दी कि इंसानों को दरख्तों से तशबीह दी गई है। ये मैंने आपसे शुरू में कह दिया। इसकी और ज्यादा तफसील बयान करना ये थोड़े वक्त में मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया। तो क्या है इस पैसेज के अंदर हम गौर से पढ़े, उसके रूहानी तौर पर जरा कुछ और इसके बारे में तहकीक और तफ्तीश करें, तो ये इंसानों के बारे में है। ये जिनको दरख्त कहा गया है, और वो भी इंसान है, और जिनसे कहा गया है कि तू हम पर सल्तनत कर, हम पर हुकूमत कर, वो भी इंसान ही हैं। ये जो पहले 3 दरख्त हैं, यानी जैतून का दरख्त, और उसके बाद अंजीर का दरख्त, और उसके बाद जो है अंगूर की बेलियां, अंगूर के दरख्त का जो जिक्र है, इनको मैं खुदावन के खादमीन, दयानतदार, ईमानदार खादमीन से तशबीह देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये इशारा खुदा के खादमीन की तरफ है। वो आज भी हैं और शुरू से खादमीन आते आए हैं। तो इन तीनों दरख्तों को खुदा के खादमीन से तशबीह दी गई है। आप अपने पास्टर साहबान भी कह सकते हैं, पादरी साहबान भी कह सकते हैं, बिशप और पोप भी कह सकते हैं, यानी ईमानदार, दयानतदार खादमीन। तो यहाँ इन दरख्तों, आगे चल के वजाहत करूंगा इस चीज की। तो ये जो है ये खादमीन है, ये खुदा के खादमीन हैं। लेकिन एक तरफ जो है, जो आखिर में जिसका जिक्र आता है, ये ऊंट कटारा है। ये शैतान की तरफ इशारा है, यानी शैतानी खिदमत और शैतान जो काम करता है, यानी ये शैतान की तरफ इशारा है। तीन दरख्त जो हैं वो खुदा के खादमीन की नुमाइंदगी करते हैं, जो उनके हवाले से ये बात की जा सकती है। और चौथा दरख्त जो है, जो ऊंट कटारा है, ये शैतान है, और ये शैतान की तरफ इशारा है। अजीज बहन भाइयों, देखिए
मैं इसकी जरा वजाहत में जाऊंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है। फिर अगर हम इनके बारे में और मजीद थोड़ा गौर करें तो फिर आप देखते हैं कि यहाँ दो लफ्ज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। दो लफ्ज पहले तीन दरख्तों ने क्या जिक्र किया है? उन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने जैतून के दरख्त से कहा तू आ और हम पर सल्तनत कर। क्या कर? सल्तनत कर। तब जैतून के दरख्त ने उनसे कहा मैं अपनी चिकनाहट को जिसके बायस मेरे वसीला से लोग खुदा और इंसान की ताजीम करते हैं छोड़कर दरख्तों पर हुक्मरानी करने जाऊं, यानी इंसानों पर हुक्मरानी करूं। तो खिदमत किन का काम है? खिदमत खादमीन का काम है। ये खुदा के दयानतदार और ईमानदार खादमीन का काम है कि वो क्या करें? खिदमत करें। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हमें खुदा यीशु मसीह की मिलती है, यीशु मसीह के शागिर्दों की मिलती है, पौलुस रसूल की मिलती है, बहुत सारे खादमीन के अंदर कि वो अपने आप को खादिम कहते थे। वो खुदा के खादिम कहलाना पसंद करते थे और वो इंसानों की क्या करते थे? खिदमत करते थे। तो क्या खिदमत और सल्तनत, यहाँ दो लफ्जों का जिक्र आया है, एक है खिदमत और दूसरा है सल्तनत। तो खादिम का काम है खिदमत करना। तो ये दरख्त यानी ये इंसान ये कहते हैं कि हम काहे के लिए मुकर्रर हुए हैं? हम इसलिए मुकर्रर किए हुए हैं, हम इसलिए पैदा किए गए हैं कि हम इंसानों को भी खुश करें जब वो हमारा फल खाएं, और खुदा भी खुश हो जब हैकलों के अंदर और मसा करने के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल हो, जब अंगूर का शीरा पिया जाए। तो ये सब इससे क्या हो? इससे क्या इंसान खुश होते हैं, और इंसान खुश हो हमारी खिदमत से। यह है खिदमत का पहलू। फिर अगर हम देखें जैतून के दरख्त को, फिर अंजीर के दरख्त को, फिर अंगूर की बेल को हम देखें तो ये क्या करते हैं? हम क्या कहते हैं? ये अपने आप को खिदमत के तौर पर पेश करते हैं। हम खादिम हैं। और ये खादिम जो है, मैं और आप जानते हैं कि दुनिया में हर कोई खादिम नहीं है। ये खुदा के मखसूस किए हुए मुकर्रर किए हुए खादिम हैं जो खिदमत का काम करते हैं। और लाजमी तौर पर मैं ये समझता हूँ, मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये खुदा के खादमीन जो हैं, इनको जो इन बड़े कीमती दरख्तों से तशबीह दी गई है, या इन दरख्तों को उनसे तशबीह दी गई है, ये कोई कम मानी खेज बात नहीं है, ये बड़ी मानी खेज बात है और बड़ी गिरा कदर बात है। इसको समझने की जरूरत है कि खादमीन का काम ये है कि वो क्या करें? इंसानों की खिदमत करें और खुदा की खिदमत करें। ये बुनियादी तौर पर उनका काम है। फिर जरा अगर हम आगे चले तो ऊंट कटारे पर गौर करें तो ऊंट कटारा जो है वो क्या करता है? सबसे पहली बात क्या करता है? वो कहता है कि मुझे क्या करो? मुझे बादशाह बनाओ। लिखा है अगर तुम सचमुच मुझे अपना बादशाह मसा करके बनाओ तो आओ मेरे साया में पनाह लो, आओ मेरे साया। और अगर मुझे बादशाह नहीं मानते और नहीं बनाते और नहीं मुझे बादशाह के तौर पर तस्लीम करते तो फिर क्या हो? मुझ में से आग निकले जो इंसानों को जलाकर भस्म कर दे, उनको खाकिस्ता कर दे। ये ऊंट कटारा है। तो हम देखते हैं कि ये तीनों दरख्त जो हैं ये खुदा के खादमीन हैं और इनकी बुनियादी जिम्मेदारी खिदमत करना है। लेकिन शैतान की कोई खिदमत नहीं, कोई उसकी खिदमत नहीं है, बल्कि उसका काम क्या है? हुकूमत करना, लोगों को हुक्म देना, लोगों को अपने ताबे करना, अपने मुती करना, उनसे तरह तरह के गुनाह, जिनाकारियां, बदकारियां, हरामकारियां, बुरे काम करवाना। और उनके लिए वो उनका बादशाह है, उनको बताता है ये करो, वो करो, ऐसे करो। और सबसे बड़ा जो एक बुरा काम वो सिखाता है इंसानों को, वो है खुदा से बगावत का काम, खुदा के खादमीन से बगावत का काम, कलाम मुकद्दस से बगावत का काम, और इंसानों की खिदमत करने से बगावत का काम वो इंसानों को सिखाता है। और फिर जो ये काम करते हैं, अगर करते रहें उसके काम तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर उनको तरह तरह के दुख, मुसीबत,
कांटे चुभोने शुरू कर देता है, दुख और मुसीबतें उन पर लाता है, ताकि वो क्या करें, उसके हुक्म के मुताबिक, उसके हुक्म को मानकर खुदा के खिलाफ बगावत करें, खुदा के खादमीन के खिलाफ बगावत करें और उनके खिलाफ काम करें। फिर ये काम करता है तो शैतान खिदमत नहीं करता बल्कि हुकूमत करता है। ये बात जहां तक पहुंची, फिर आगे फिर वापस अगर चलते हैं तो फिर हम देखते हैं बाकी तीनों दरख्तों ने, यानी जैतून के दरख्त ने, अंजीर के दरख्त ने और अंगूर की बेल ने क्या कहा, हमने खिदमत करनी है, खुदा ने हमें क्या करना है, इंसानों की और खुदा की खिदमत के लिए हम मुकर्रर हुए हैं, हमने ये करना है। अजीजों, जरा थोड़ी देर के लिए इस चीज पर मैं बात करना चाहता हूं। खुदा के खादमी, सबसे पहले मैं जरा यीशु की मिसाल दे। यीशु मसीह ने इंसानों की खिदमत की, और कैसी खिदमत की, ऐसी खिदमत की आला तरीन मिसाल पेश की कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोने थे तो यीशु मसीह ने बजाते खुद अपने शागिर्दों के पांव धोए और अपने पटके से उनके पांव को साफ किया। और जब पतरस ने थोड़ी सी बहस करने की कोशिश की कि तू कभी मेरे पांव नहीं धोने पाएगा, तो यीशु क्या कहते हैं, अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं और अगर तू मुझसे पांव ना धुलवाए तो फिर तू मेरे साथ शरीक ही नहीं है, मुझ में शामिल ही नहीं है। तो फिर पतरस ने क्या कहा, पहले तो पांव धुलवाने से मना कर रहा था, फिर कहने लगा मुझे पूरा धो दे खुदावन, मुझे पूरा धो दे। तो फिर यीशु ने कहा जो नहा चुका है उसको पांव धोने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि आला तरीन खिदमत की मिसाल खुदावन हमारे मुनज्जी हमारे निजात दहिंदा ने सबसे पहले एक खादिम की आला तरीन मिसाल पेश की, और ऐसी बाइबल के अंदर कोई मिसाल कम ही मिलती है। हाँ, मरियम मगदलीनी का अगर हम पढ़े तो उसने क्या किया, यीशु के पांव धोए, अपने आंसुओं से उनके पांव धोए और अपने खुशबूदार बालों से यीशु मसीह के पांव पहुंचे। ऐसी खिदमत की मिसाल भी मरियम मगदलीनी के हिस्से में है, और भी चंद खवातीन हैं। तो खिदमत जो है वो बुनियादी तौर पर खादमीन का काम है। तो अब सबसे पहली मिसाल मैंने आपके सामने यीशु की मिसाल दी, और यीशु जो है, जहां यीशु अजीम तरीन खादिम था और है और रहेगा, और इसके साथ ही साथ यीशु मसीह जो है वो अजीम बादशाह भी है। वो बादशाहों का बादशाह है, वो सल्तनत करता है, वो हुकूमत करता है। किन पर? इंसानों पर नहीं बल्कि शैतानी कुव्वतों पर, और शैतान पर सल्तनत करता है और हुकूमत करता है। और यीशु मसीह के शागिर्दों ने और दीगर खुदा के खादमी ने, अंबिया ने, पैगंबरों ने, रसूलों ने ये सब कुछ किया कि उन्होंने इंसानों की तो खिदमत की, लेकिन शैतान पर और सारे शैतानी कामों पर हुकूमत की, और उनको ताबे और मुती किया, और उनको ऐसा किया कि शैतान को मानना पड़ा यीशु मसीह के बारे में, शागिर्दों के बारे में भी। तो कहने का मकसद ये है, जो लुब्बे लबाब इस बात का, वो ये है कि खादमीन को जैसे मैंने आपको मिसाल दे दी, यीशु ने इंसानों की खिदमत की, और इब्लीस पर और इब्लीसी कामों पर और इब्लीस के सारे हथकंडों पर यीशु मसीह ने सल्तनत की और हुकूमत की और हुक्म दिया। और यीशु मसीह ने कई जगह शैतान को हुक्म देकर दूर किया, बहुत सारे इंसानों की बदरूहों को हुक्म के जरिए निकाला, यानी कि सल्तनत की और हुक्म दिया। ये एक बात है। तो कहने का मकसद ये है कि खादमीन जो है यहाँ जो दरख्त ने अपनी खिदमत का जिक्र किया है, लेकिन अगर इसको और गहराई से देखें तो ये सल्तनत भी करते हैं और ये हुकूमत भी करते हैं शैतान पर और शैतानी कुव्वतों पर। ये हुकूमत भी करने का इख्तियार दिया है, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और शैतान की सारी शरारत पर, उसके सारे कामों पर गालिब आओ।
तो ये क्या है? हुकूमत करने का यीशु मसीह ने एक जो हुक्म दिया, जब मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, क्योंकि मैंने शैतान पर सल्तनत की है, हुकूमत की है, और इसी तरीके से मैं तुम्हें भी इख्तियार देता हूँ कि क्या करो? शैतान पर क्या करो? हुकूमत करो। अब हुकूमत क्या है? हुकूमत क्या है? वो है कि जिन पर शैतान ने कब्जा किया हुआ है, जो जिंदगी इंसान के यानी इंसानी जिंदगियां शैतान के कब्जे में हैं, उनको आजाद करो, उनको शैतान के बंधन से, जकड़न से आजाद करो, उनको शैतानी बीमारियों से दूर करो, उनके लिए निजात का काम वो जो मैंने कर दिया है, उस निजात के काम को जारी और सारी रखो और निजात के काम करो, अपने लिए भी और इंसानों के लिए, ताकि इंसान आजाद हो और शैतान के चुंगल से, शैतान के बंधन से, और आजादी के साथ वो पाक यहोवा खुदा की इबादत करें, यीशु की। तो क्या है? यानी हर किस्म की शैतानी कुव्वतों, तासीरों, शैतानी बीमारियों से क्या करना है? इंसानों को हुक्म देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी बीमारियों को हुक्म देकर शैतान को, बीमारियों को उन इंसानों से क्या किया? दूर किया। तो यीशु मसीह ने खिदमत भी की और यीशु मसीह ने हुकूमत और सल्तनत भी की। यही काम यीशु खादमीन से लेना चाहता है या उनको हुक्म देता है। कहने को और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैंने आपके सामने चंद सीधा बातें मैंने आपसे करके ये समझने और समझाने की कोशिश की है कि खादमीन जो हैं ये इस रूए जमीन पर खुदा का बहुत बड़ा असासा भी है, बड़ा कीमती असासा भी है। इनके जिम्मे खिदमत करना भी है और सल्तनत करना और हुकूमत करना भी है शैतानी कुव्वतों पर। अब अगर थोड़ी सी ऊंट कटारे की बात कर लें, तो ऊंट कटारा जो है कोई खिदमत नहीं करता, कत्तन कोई खिदमत नहीं करता। ये हुकूमत करता है और सल्तनत करता है, और जो उसको नहीं मानते फिर उनके लिए दुख और मुसीबतें और परेशानियां और तरह तरह की बीमारियां ये भी पैदा करता है, और उनको अपने चुंगल में और अपने पंजे और शिकंजे के अंदर रखना चाहता है। लेकिन खुदा के खादमीन यहाँ भी काम करते हैं कि वो लोग जो शैतान के कब्जे और तसल्लुत में हैं, उनको आजाद करने का काम भी करते हैं। तो ऊंट कटारे की कोई खिदमत नहीं, ये तो कांटे ही चुभोना है इसने। जो भी इसके पास जाएगा ये कांटे ही चुभोएगा। तो फिर ये इंसान की अपनी अक्लमंदी होनी चाहिए, होशियारी होनी चाहिए। क्या शैतान से कांटे चुभवाना ज्यादा बेहतर मुफीद है, या खुदा के खादमीन के पास जाना, खुदा के खादमीन के साथ मिलकर पाक यहोवा खुदा की इबादत करना, शुक्रगुजारी करना और अमन अमान से रहना? जैसे यीशु मसीह ने कहा, क्या यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। काय का बोझ? गुनाह का बोझ, शैतान का बोझ, शैतानी कामों का बोझ। यीशु ये कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं तुम्हें इससे बिल्कुल फारिग कर दूंगा। मेरे पास आओ, इसका इलाज मेरे पास है, मैं ही तुम्हारे दुखों को मुदावा कर सकता हूँ और तुम्हें दुखों से और यानी बोझ, गुनाह एक बहुत बड़ा बोझ है। तो यीशु कहता है, मुझ पर डाल दो, अपना बोझ मुझ पर उठा दो, मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं बोझ उठाता हूँ और मैं तुम्हें पुकारता हूँ और कहता हूँ। देखिए आज बहुत सारे खादमीन दुनिया के अंदर यही काम कर रहे हैं। बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं करता जी, सबकी बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं ये यकीन और ईमान रखता हूँ कि खुदावंद के खादिम इस रूए जमीन पर मौजूद हैं, जो इंसान को दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से निजात रिहाई दिलाते हैं, शैतान के चुंगल से निजात और रिहाई उनको दिलाते हैं और उनको आजाद करते हैं और ये पैगाम देते हैं कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होना चाहते हो तो सच्चाई यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास आओ, हम यीशु मसीह के खादिम हैं, हम आपके खादिम हैं, हम आपकी खिदमत के लिए मुकर्रर हुए हैं। तो ये खादमीन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज और पैगाम इस हवाले के अंदर मौजूद है। वो अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए वक्फ करें और इंसानों की खिदमत करें। अजीज बहन भाइयों, मैं यहाँ और बात कर देना चाहता हूँ। देखिए, खुदा के खादमीन अव्वल दर्जा रखते हैं
और ये खुदावन के वो जो सच्चे और हकीकी खादिम हैं, जो ईमानदार देनदार खादिम हैं, जो रूह और सच्चाई से खिदमत का काम करते हैं, इन्हीं का काम है, इन्हीं का काम है। ये खिदमत भी करते हैं और सल्तनत भी करते हैं, दोनों काम करते हैं खुदा के ईमानदार देनदार खादमी। इसके अलावा एक खादिमों की और किस्म है, वो भी इस रुए जमीन पर मौजूद है। वो अपने पेट की खिदमत करते हैं, बस उनका पेट ही है, उनका पेट ही है। और वो पेट के लिए लिबादा तो उन्होंने खादिम का ओढ़ा हुआ है, एक रूप जो है वो तो खादिम ही का उन्होंने ढाला हुआ है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के खादिम हैं। और वो नहीं सोचते कि जो रूहें, जो जाने, जो जिंदगियां हमारे जिम्मे हैं, हमने क्या करना है, इनको बचाना है, इनको खुदा की बादशाहत में लेकर आना है, खुदा की बादशाह में दाखिल और शामिल करने के लिए हमने अपनी खिदमत करनी है। लेकिन उनकी सारी तगोदो जदोजहद अपने पेट के लिए है, और हत्ता के 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 पैसों के लिए, वो लोगों के ईमान से और वो निजात और रिहाई जो यीशु मसीह ने दी है उससे खेलते हैं। बस उनका काम सिर्फ यही है कि हमने अपना पेट पालना है, यही उनकी खिदमत है। फिर तीसरी किस्म जो है खादिमीन की, वो है शैतान के खादिम, खुदा के खादिम, शैतान के खादिम, पेट के। ये जो शैतान के खादिम जो है, ये कौन है? ये भी इन्होंने जो रूप धारा हुआ है और जो चोला पहना हुआ है, वो तो खुदा के खादमीन का ही पहना हुआ है। देखने में ये खादमीन ही नजर आते हैं, लेकिन असल में ये फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये भेड़ों में घुस जाते हैं और भेड़ों का लिबादा ओढ़कर उनकी खाल पर, लेकिन अंदर आकर जो चीर फाड़ करते हैं अपने अपने पेट के लिए, अपनी रोटी के लिए, रुपए पैसे के लिए, ऐश और इशरत के लिए, आराम करने के लिए और पैसा इकट्ठा करना। बस इनका ईमान जो है, इनका दीन जो है वो पैसा ही है, बस पैसा ही पैसा है, और कोई खिदमत वगैरह कोई नहीं, क्योंकि खिदमत करने तो लायक ही नहीं। खिदमत करने की तो इनके अंदर सकत ही नहीं है, ताकत कुवत ही नहीं है, रोल कुछ की। इन्होंने क्या खिदमत करनी है? इन्होंने तो बस ये करना है, वक्त पास करो, पैसा इकट्ठा करो। और हम देखते हैं कि जर की दोस्ती इनकी इनका ईमान है। बस पैसा इकट्ठा करना है। भेड़ों का नुकसान होता है तो होता रहे, उन्हें क्या। मैं अजीज बहन भाइयों, आपकी खिदमत में जो मैं समझता हूँ, जो मैंने समझा, खुदा के पाक ने मेरी मदद की, मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। अब देखें, खादमीन को पहचाने, भेड़े पहचाने। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़े मेरी आवाज पहचानती हैं और मुझे जानती हैं। मेरी भेड़े मुझे जानती हैं और मुझे पहचानती हैं, मेरी आवाज को पहचानती हैं। इसलिए भेड़ों, इंसानों यीशु जमीन पर मौजूद हो, खुदा के खादमीन को पहचानो, पेट के खादमीन को पहचानो, शैतान के खादमीन को पहचानो, और चुनाव जब करो तो खुदा के खादमीन का करो, क्योंकि खुदा ने उन्हें इस हुए जमीन पर कायम ही इसलिए किया है कि वो क्या करें, इंसानों की खिदमत करें और खुदा की खिदमत करें। तो गोया जब कोई इंसानों की खिदमत करता है, जिस तरह हमारे मुनज्जी, हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह ने खिदमत की आला तरीन मिसालें पेश की और खिदमत की। और जब हुकूमत करने की बात आई तो भाई यीशु मसीह ने हुकूमत की, और यीशु अब्दुल आबाद बादशाह है, अब्दी बादशाह है, यीशु मसीह है। ठीक है जी। तो हमने आज के कलाम मुकद्दस में से सीखा। तो भेड़ों के लिए जो मैंने पैगाम दे दिया है, भेड़े भी होशियार रहें। क्या लिखा है खुदा के कलाम मुकद्दस में? क्या है? कबूतर की तरह बेआजार और सांपों की तरह होशियार रहो। और इसका मतलब यह है, एक तरफ खिदमत है, लेकिन होशियार रहना है कि कहीं शैतान का कोई डंग, शैतान का कोई तीर, शैतान का कोई वार, शैतान का कोई हरबा, कोई हथकंडा जो है वो उन पर असर ना करे, काम ना करे, और उस निजात में जिंदगी गुजारे जो मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने कायम कर दी है। निजात कायम है,
क्योंकि यीशु कायम है, निजात कायम है, क्योंकि उस निजात को कायम करवाने वाला अपने प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से खुदा कायम है, रूहुल कुद्स कायम है, रूहुल कुद्स मौजूद है। तो ये याद रखें कि निजात कायम है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो हम अपने अपने कामों की वजह से कहीं निजात को लूज ना कर दें। निजात तो कायम है, लेकिन हम में से कोई निजात को लूज कर सकता है, खो सकता है। इसलिए ईमान में कायम रहें, ईमान में कायम रहें, निजात में कायम रहें, और खुदा के कलाम मुकद्दस को बड़े गौर से पढ़ा करें और समझा करें और इस पर अमल करने वाले बने। खुदा मेरे और आपके साथ हो और इस कलाम मुकद्दस के वसीले से हम सीखने वाले बने। आमीन, आमीन।